लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। आज से 7 महीने पहले राहुल गांधी ने कहा था कि देश में लोकतंत्र नहीं है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, और इन्होंने अपनी इसी सोच के साथ भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसका कि मुख्य उद्देश्य था भारत को जोड़ना। लेकिन अब लग रहा है कि देश का लोकतंत्र नहीं बल्कि राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार खतरे में है, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस जिसकी 180 सीटों में से केवल 8 सीटें हाथ लगी है, यानी कि उम्मीद से न के बराबर है, और जिसके पास 5 राज्यों में से एक भी MP नहीं है। कांग्रेस का ये बुरा हाल आज से नहीं बल्कि 2014 से बना हुआ है, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है। I'd like to start by congratulating the new government. और आज कांग्रेस के इस बुरे हाल का सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी का असफल भारत जोड़ो यात्रा के बाद विदेशी दौरे पर जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलना है। I could think about it and say, yeah, okay, maybe that policy that he's done is not a bad policy, right? Maybe giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing, it's a good thing. But that sort of misses the point, right? Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens, right? And I think that's what he's doing. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb, right? India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react, right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. Right? I don't agree with him. Now, if your disagreement is so fundamental, then really talking about 3 policies that you... राहुल गांधी के इस विदेश दौरे के दौरान की 3 सबसे बड़ी उपलब्धियां सामने आई हैं। पहली उपलब्धि यह है कि राहुल गांधी की और कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता का लोगों के सामने आना। If you look at the time from independence to now, the Congress party has been in power for majority of the time, right? So it's not that the BJP has been in power. Before the BJP was in power for 10 years, we were in power for 10 years, right? And so it's not. I mean, the BJP likes to believe that they've come to power in India and they're going to be in power eternally. You know, that's not the case, right? But to say that now the BJP is in power and the Congress is gone, I mean that's actually ridiculous idea. Democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. It shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat and controlled. चमचों के लगातार चढ़ाने के बाद राहुल गांधी ने सचमुच मान लिया है कि PM पद उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तभी तो वो भरी हुई सभा में कभी भी ये कहते हुए हिचकिचाते नहीं है कि मुझे बस एक बार प्रधानमंत्री बनना है। और अगर दूसरी तरफ भारत के लोग उनको चुनाव में नकार रहे हैं तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाता है, यानी कि तोड़ मरोड़ कर वो अपनी हार को लोकतंत्र से जोड़ रहे हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी की कोई भी देश हित विचारधारा जनता के सामने नहीं रख पाए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने में असफल रहे हैं, और जब भी इन्होंने अपना मुंह खोला है तब इन्होंने देश और धर्म विरोधी बातें ही की है। सही है ना? और अपनी इन्हीं विचारधाराओं की वजह से आज इन्होंने 27 चुनाव हरवाकर पार्टी का बंटाधार कर दिया है। Sorry.
इनकी इन हरकतों की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए और ये वाकई में उसके हकदार भी है, क्योंकि अपने भाषणों के वक्त इन्हें खुद पता नहीं होता है कि ये क्या बोल रहे हैं, इससे देश या अपनी पार्टी पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अब इनकी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है विदेशी ताकतों को खुला निमंत्रण देना। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन दोनों जगह कहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और अमेरिका यूरोप जो कि एक लोकतांत्रिक है वो न तो इस पर कुछ कह रहे हैं और न ही कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस मानसिकता और विचारधारा से ये स्पष्ट होता है कि वो भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं, बिल्कुल अपने परदादा की तरह। अब आप खुद ही सोचिए कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए किस हद तक गिरने को तैयार हैं कि वो उससे मदद मांग रहे हैं जिन्होंने हमें 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा था। क्या राहुल गांधी को लगता है कि ऐसा करने पर देश की जनता खुश होकर उन्हें प्रधानमंत्री का पद यूं ही दे देगी? इनकी तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है विपक्षी एकता का बखान करना। राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि भारत का विपक्ष मिलकर इंक्लूसिव विजन ऑफ इंडिया पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये हर कोई जानता है कि सभी विपक्षी पार्टियां अभी तक एक भी कॉमन एजेंडा पर भी नहीं आई है, तो एक साथ इंक्लूसिव विजन ऑफ इंडिया की बात तो छोड़ ही दो। कांग्रेस के राज्यसभा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस दिन ओपोजिशन की बात करते हैं उसके अगले दिन ही त्रिपुरा जाकर राहुल और ममता बनर्जी को खरीखोटी सुनाते हैं और अगले दिन ममता कहती हैं कि वो उनके या किसी के साथ भी 2024 का चुनाव नहीं लड़ेगी। I must congratulate the people of Meghalaya. We just started before 6 months ago and we have got 15% vote. It will help me for my national party status and it is the principal opposition. So I congratulate the Meghalaya people. Next we will do better from this time also. चाहे अखिलेश यादव या फिर तेजस्वी, कोई भी कांग्रेस के साथ 2024 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता है क्योंकि उन्हें चुनाव हारने का डर है। राहुल गांधी की विपक्षी एकता वाली बात को ध्यान में रखें तो आप ही बताइए कि ये किस तरह की विपक्षी एकता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी के कुछ भी बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के लिए आने वाले भयंकर समय में उनके लिए चुप रहना ही फायदेमंद होगा। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना। चुप, बिल्कुल चुप। क्योंकि एक तो पहले से कांग्रेस सरकार कब्र में जाने को तैयार है, ऊपर से जब भी राहुल गांधी अपना मुंह खोलते हैं कांग्रेस की कब्रें 1 फुट और नीचे खुद जाती हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप इसी तरह के सोशल इश्यूज वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हो रहा नए भारत पे विश्वास, पहुंच रहा है देश तरक्की के पास, इसीलिए फिर एक बार